So if you were anything like me, जैसे कुछ नहीं है. Okay, so if you were okay, so if you were anything like me, when you were a kid, जिसके दोस्त नहीं थे ज़्यादा, इनफैक्ट मुझे ज़्यादा बुली किया गया था, तो तुम्हारा एक ही दोस्त था, वो था टीवी. और आज मैं बात करने वाला हूँ उसी एक कार्टून शो की जो मैं बहुत देखता था when I was a kid and I still watch it when I feel like it and I love that show. तो मैं फुल कैरेक्टर में हूँ, लाइक वेब शूटर्स एंड ऑल एंड स्पाइडरमैन मास्क. और यस, मैं मास्क निकालने वाला हूँ क्योंकि आई डोंट नो, आई थिंक もうそんなんじゃほら心は進化するよもっともっと तो या, इफ़ यू वर एनीथिंग लाइक मी, जिसके ज़्यादा दोस्त नहीं थे, तो द ओनली फ्रेंड यू हैड वाज योर टेलीविजन, जिसके ऊपर तुम दिन भर कार्टून शोज देखते रहते थे इंस्टेड ऑफ गोइंग आउटसाइड एंड प्लेइंग विथ योर फ्रेंड्स. एंड आई नेवर हैड दोस. व्हेन आई हैड, हर्ष प्लीज गुस्सा मत हो जाना, पर माई पॉइंट इज़ आई नेवर प्लेड स्पोर्ट्स, क्योंकि वेल मुझे खेलना नहीं आता था और आई हैव नो आइडिया मैं उसे अभी भी कैसे खेल सकता हूँ, क्योंकि मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ आई थिंक प्रॉबेबली, और मुझे कोई सिखाएगा भी नहीं. पर well, I don't have time for it anyways. So if you were anything like me, you would be watching TVs inside, sitting all day. So I'm going to talk about a show, very spectacular show, spectacular, but we are talking about Ultimate Spider-Man here. तो Spider-Man was someone जिसके साथ मैं बहुत ज़्यादा रेजोनेट कर सकता हूँ, क्योंकि वो मेरे तरह नर्ड था, उसके ज़्यादा दोस्त थे नहीं वैसे, और he lives the dream of every skinny kid and mine. I could not agree more with Andrew Garfield on this one. So just like the normal Spider-Man iterations which followed the story of Peter Parker just after becoming Spider-Man, पर इसमें there was a twist. इसमें we follow the story of Peter Parker who just got his Spider-Man powers, and it's been almost roughly a year, but suddenly pops up Nick Fury. This version of Peter Parker is rather cocky with his powers, जो उसे लगता है कि he is better overall, मतलब उसे अकेले चीज़ें करने में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, and not the guy who needs help with. मैं इसको निकाल दे रहा हूँ, no. तो हाँ, this version of Peter Parker was cocky, confident, bold, not the introvert kid. But yes, he was still bullied by Flash somehow. पता नहीं ये इतना cocky होके भी कैसे bully हुआ. पर he 1 year into the with greater powers comes great responsibilities thing, enters Nick Fury. Shield वाला, yes, वही shield. Cool guns, jetpacks, symbiote, yes, more on that later. Symbiotes and actual powerful shit. You know, stuff like stuff which people like me get excited about, very very excited about. So वही shield approaches Spider-Man, in which Nick Fury is like let me do this तो बच्चे तुम अच्छे हो, पर we can make you ultimate. And Nick Fury just obliterates him, straight up roasts him, क्योंकि उससे he cannot handle Trapster, fun Trapster, और फिर उसे पता था कि कैप्टन अमेरिका उसको कैसे हैंडल करता और तूने कैसे हैंडल किया एंड ऑल ब्ला 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 ब्ला, कोई नहीं सुनना चाहता वो सब. तो season 1 starts, Spider-Man agrees, और that's where season 1 actually begins. और पर निक फ्यूरी सोचता है कि एक टीनेज इमोशनली chaotic सुपर हीरो से ज़्यादा क्या बेटर है. 5 सुपर हीरोज़, और वो भी एक टीम में. It was like a Teen Titans concept, पर everyone was totally mature, especially Nova. More on that later. So the team consists of Noah, the living definition of Red Bull gives you wings.
देन वाइट टाइगर, टैक्टिकल स्ट्रेटेजिक, एवरीथिंग गुड, मतलब मिस परफेक्ट. फिर आयरन फिस्ट, not much to say about that guy. He's really scary. Not, please, Danny, please, but very cool. Martial artist. Then comes Power Man. Well, Power Man is Power Man. Hulk Light. Hulk from Alibaba Express. AliExpress, sorry, Alibaba.com. Hulk from Meesho is Power Man. So the season 1 starts and they go all in. Next, the whole premise of the show is Spider-Man trying to adapt उसके new superhero friends जो वो बिल्कुल नहीं करना चाहता, पर in the end वो धीरे धीरे करके उसको अडाप्ट कर लेता है. एंड दिस सीजन एक्सप्लोर्स विलन्स लाइक ग्रीन गॉब्लिन, डॉक्टर ऑक्टोपस, ग्रीन गॉब्लिन, डॉक्टर ऑक्टोपस, वेनम. फन फैक्ट, वेनम इस यूनिवर्स में एक एलियन नहीं है. वेनम इस यूनिवर्स में एक शील्ड साइंस एक्सपेरिमेंट गॉन रॉन्ग है. तो देयर इज़ अ न्यू टेक हियर, but very interesting. Season 2 starts with the same premise of Spider-Man is more like a leader now क्योंकि उसका character development हो गया. But in this one it's the Goblin is back. So season 2 is like Venom, let there be carnage. Everywhere is symbiotes. Harry becomes anti-Venom. तो देर इज़ दैट. तो बहुत सारी चीज़ें होती है, पर इट्स मोस्टली रिवॉल्व्स अराउंड द सेम मार धाड़ स्टफ, नॉट मच. पर इन द एंड ग्रीन गॉब्लिन कम्स बैक और फिर वो सोचता है क्यों ना हम ट्विस्ट करें, और ग्रीन गॉब्लिन्स ओपन पोर्टल टू मल्टीवर्सेस, और कुछ तो उसका प्लान होता है अबाउट गेटिंग स्पाइडरमैन का ब्लड फॉर डूइंग समथिंग. आई डोंट रिमेंबर मच अबाउट इट नाउ, पर दैट brings us to the most exciting arc of the storyline ever. I mean, मेरा favorite season है season 3 क्योंकि it explores the whole multiverse before Spider-Man Into the Spider-Verse did this, and I love. And then begins season 4 जहाँ पे main highlight is Dr. Octopus creating the Sinister Six, और Peter also teamwork फॉर फैमिली वाला काम करके वो निपटा देता है. पर इस सीज़न में हैरी ऑसबॉर्न बिकम्स एंटी वेनम. यस, बेयर विद इट. नॉर्मन ऑसबॉर्न बिकम्स आयरन पेट्रियट. आई थिंक पूरा सीजन इज मेनली बेस्ड ऑन द ऑसबॉर्न्स. इतना स्क्रीन टाइम क्यों दिया इन लोगों को, मैन, प्लीज़. फिर शील्ड इज़ ऑन फायर. Shield is being Shield. Shield का कुछ नहीं कर सकते. Shield has a very small role in the whole series, पर I love the part. I love the Shield वाला element क्योंकि Spider-Man has Shield is, and why not? Also, by the way, in season 2 we also get many appearances like Thor, Captain America, Wolverine, Doctor Doom, Deadpool. And Deadpool वाला episode को थोड़ा tone down किया गया क्योंकि Deadpool was being a bit too Deadpool. Of course, that's the problem with Deadpool. But the Deadpool वाला episode was one of my favorite episodes क्योंकि Spider-Man को Deadpool के साथ interact करते देखते हुए बहुत मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है. और तो यार it was very fun series overall. पर series के end में आते आते Spider-Man has actually become the अल्टीमेट स्पाइडरमैन, जिसके लिए ये पूरे 4 सीजन्स 104 एपिसोड्स, पता नहीं कितने घंटे लग गए, पर ही इज़ फाइनली देयर. और वेरी नाइस ऐसे वह पार्टी वार्टी होती है एंड स्टफ. तो द सीज़न रैप्स अप ऑन गुड टर्म्स. अच्छी तरह से रैप हो जाता है ये कार्टून. और इट्स अ ग्रेट कार्टून व्हाटसोएवर. बहुत एक ऑल्सो बिट है उसमें जहाँ पे टास्क मास्टर कम्स अप और स्टार्ट्स टू गैदर जो नए सुपर हीरोज आते हैं उनको, ताकि वो एक ऑपोजिट टीम बना सके शील्ड की टीम को लिए. तो फिर वो भी एक आर्क है. दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग. तो
दो अल्टीमेट स्पाइडरमैन हैड मिक्स रिव्यूज़ क्योंकि लोगों को चाहिए था एक डार्क विटियर स्पाइडरमैन टाइप, आई मीन डार्क नहीं पर मोर, और लोगों को चाहिए था मोर रिस्पॉन्सिबल स्पाइडरमैन, पर ये वाला स्पाइडरमैन वाज वे लॉट on the childish side, like dramatic, but I think that portrayed the character of a teenager very well. Except मतलब if I get powers, I mean I might be cocky bit, I might be a bit overconfident. It shows us कि Spider-Man is very human. That's what I think. Instead of show मतलब एक teenager के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाल दी और उसको एक बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा आदमी बनाने से अच्छा दिस शो मेक्स इट ग्रेजुअल ताकि चेंज रियलिस्टिक लगे और मेक्स एवरीथिंग 1000 टाइम्स फनीयर. आई हैव अ वेरी गुड ह्यूमर क्योंकि दिस शो या नहीं आता, पता नहीं ह्यूमर के बारे में मुझे मत पूछो प्लीज़, पर दिस शो इन्फ्लुएंस मी अ लॉट विद स्पाइडरमैन, और नॉट जस्ट स्पाइडरमैन पर मैनी कैरेक्टर्स जो इंट्रोड्यूस हुए मुझे इस शो की वजह से, जो बहुत लोगों को नहीं पता होते, जैसे क्लोक एंड डैगर, वुल्वरीन. यस, आई डिड नॉट नो वुल्वरीन, इससे पहले मैं बच्चा था, ऑफ कोर्स आई वाज इन 3rd grade प्लीज़. देन डेडपूल, यस डेडपूल, फिर उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज, many characters, Taskmaster, I love Taskmaster, dude. मून नाइट भी आता है इसमें, ब्लेड आता है. ब्लेड इज़ निक फ्यूरी का छोटा भाई. इफ़ ही वॉज अ वैम्पायर नहीं, ही इज़ अ वैम्पायर एक्चुअली. तो द प्रॉब्लम विद द शो वॉज कि उसको थोड़े मिक्स रिव्यूज़ मिले, पर आई डोंट थिंक ओवरऑल इट हैड मैनी फ्लॉज. थोड़ा सा कैरेक्टर डेवलपमेंट वॉज स्लो, पर आई थिंक it was a very good show overall. I am very biased क्योंकि मेरे बचपन का शो है ये, of course मैं biased रहूँगा इस पे, पर overall this was a very great experience for me. It made my childhood actually, so you cannot blame me for being biased. And so yeah, that's it with review why Ultimate Spider-Man is the best Spider-Man show of all time. This is me, Tejas, signing off from VView, and I think take care everybody, and peace.